channel. Before going further, please like this video and subscribe to my channel. So I am back with a much awaited Q&A video for you guys, and I'm gonna be answering all your questions in this video. I have all the questions written in this diary, so let's get started. The first question is, which state I am from? So I am from Uttar Pradesh, Greater Noida. And the second question is my age and my favorite subject. I am 15 years old and I just turned 15 in August. So my favorite subject is maths, and वैसे तो maths ही है, but जब कोई भी subject हो जाता है तो वही favorite हो जाता है. The third question is my school name. So I study in Sarvottam International School, Greater Noida. The next question is my board. I am from CBSE board and I am a 10th grader of batch 2023 to 2024. Moving on. Which reference book I use for science, maths, English and social science? Sparsh has asked this question. For science, I use Educart and Educazone both. I'll tell you about these books in my next and next to next videos in detail. So stay tuned. Okay. For maths, I use R.S. Agarwal and NCERT example. And for SST, I don't really use any specific reference book. But मैं क्या करती हूँ, I only read NCERT and I refer to some YouTube channels. If you want, I can tell you about these YouTube channels in my next videos. And for English, I use BBC Compactor. It is a really great book. Though it is not available on Amazon, जितना मेरे को पता है, मैंने चेक करा था. Otherwise, अगर होगा तो आप ले लेना, नहीं तो फिर it will be available in the nearby bookstores. Moving on. Do I go to any tuition or any coaching? Okay, I used to go to a tuition till June, but June se I have switched to PW and I am from Udan 2.0 batch and I take classes from there. So the next question is again by Sparsh. How much syllabus have I completed in all subjects? So overall I have completed 75 to 80% syllabus. जो बाकी का सिलेबस होगा वो मैं इस मंथ में कवर कर लूँगी अच्छे से, एंड आई स्टार्ट माई रिविजन फ्रॉम नवंबर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन जो है बहुत बार मेरे कमेंट सेक्शन में गाइज ने पूछ रखा है, तो मैं बता देती हूँ दोबारा से. डिफरेंस बिटवीन वीकली प्लानर एंड टू डू लिस्ट. सो अ वीकली प्लानर इज अ प्लानर जिसमें हम लिखते हैं कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं डे वाइज. मैक्सिमम टू मिनिमम आप अपने हिसाब से लिख लेते हो. मैं तो 3 लिखती हूँ, 3 या 4 ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उससे ज़्यादा करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, तो वीकली प्लानर में हम सिर्फ सब्जेक्ट्स लिखते हैं हमें कौन कौन से करने होते हैं डे वाइज, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. एंड इन अ टू डू लिस्ट हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमें कौन से इन अ टू डू लिस्ट हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमें कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर करना है. वो चैप्टर लिखेंगे जो सब्जेक्ट हमने प्लानर में लिखा है ना, उससे रिलेटेड ही टू डू लिस्ट बनती है. सो इनको सेपरेट करना इज मच ईजियर, ताकि जब आप अपना प्लानर या टू डू लिस्ट बनाओ तो आप कंफ्यूज ना हो कि आज क्या करूँ, अब अगले दिन क्या करूँगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल. आई होप इट इज़ क्लियर. क्वेश्चन इज टफ चैप्टर्स. सो मेरे को कौन से चैप्टर्स टफ लगते हैं मैथ्स में एंड साइंस में. देखो, मैथ्स में तो मेरे को सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स टफ लगता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं और कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो ही जाती हैं. जितना भी अवॉइड कर लो हो ही जाती हैं, एक ना एक बार तो हो ही जाती हैं. एंड इन साइंस मुझे सबसे टफ लगता है कार्बोनेट्स कंपाउंड्स एंड जो एसिड बेसिस सॉल्ट्स है ना. मतलब केमिस्ट्री मेरे को टफ लगती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है. इतना ज़्यादा याद करने में ना जो रिएक्शंस होते हैं ना वो ऐसे मिक्स हो जाते हैं, इसलिए वो मेरे को टफ लगता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is what will be my revision strategy. So जो भी मेरी revision strategy होगी पूरे syllabus के लिए, उसके लिए I will make a separate video, a detailed video, so stay tuned for that. And the next question is my half yearly marks. Okay, so apparently I haven't gotten my half yearly marks, and whenever I'll get them I'll tell you guys first. Okay, so please wait until then and I'll tell you soon. मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक मिल जाएंगे, तो मैं आपको बता दूंगी. एंड आई ऑल्सो टेल यू ऑल द मिस्टेक्स आई मेड सो दैट यू कैन अवॉइड इट इन योर हाफ ईयरली, जिसके भी अक्टूबर में होने वाले हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, माई टाइम टेबल. सो आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक टाइम टेबल एज सच, बिकॉज
टाइम टेबल जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन ही फॉलो होगा, बिकॉज इट इज़ मतलब वेरी टाइम बाउंड होता है, वो इतने बजे से इतने बजे ये करना है, एंड दैट इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल, किसी से भी नहीं हो पाता ये. एंड आई प्रेफर टू डू लिस्ट एंड वीकली प्लानर मोर देन टाइम टेबल, क्योंकि मतलब ऐसे टाइम एडजस्ट हो जाएगा इधर उधर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स. सो आई हैव चोजन स्टैंडर्ड मैथ्स. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज माई रूम टूर. ओके, सो मेरे रूम में अभी रेनोवेशंस आर गोइंग ऑन, सो दैट्स वाई वो रूम पूरा फैला हुआ है एंड इट्स नॉट इन अ गुड स्टेट टू बी शोन. सो दैट्स वाई मैं रूम टूर नहीं कर सकती. आई विल कम अप विद अ रूम टूर सून, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड. So that's it for this video. If you liked it, don't forget to like it and share it and subscribe to my channel as well. Also, don't forget to join my Telegram channel for everyday updates of upcoming videos and some question papers as well. You can also follow me on Instagram for a sneak peek into my personal life. Bye, take care.